জনভূমি ছাড়লি পূর্ব দেশে আওলি হায় বিধি বড়ি দুঃখা ভেল সারা দিন কাম করি মিলে চवनी विधि बड़ी दुखा भेल विधि बड़ी दुखा भेल कलकत्ता डिपू घर लिखो लगीर मिटिया हाय राजा बड़ी बुद्धिवान कल गाड़िए चापाई के आनलो आसाम राजा बड़ी बुद्धिवान राजा बड़ी बुद्धिवान सदार बोले काम काम बाबू बोले धरे आन साहब बोले लिबो पीठे रे Every morning, you wake up and start your day with a cup of tea. But have you ever wondered where that tea comes from? Or who does the hard work to make your mornings feel fresh? In India, tea is everywhere, at every street corner, in every home, in every workplace. And most of us can't imagine our day without it. But what about the people behind it? What is life like for the workers who make this daily ritual possible? Do they get paid fairly? Does an industry that earns thousands of crores truly care for the very backbone of its business, the tea garden workers? Assam is the heart of India's tea industry. It produces more than half of the country's tea and brings in thousands of crores in foreign exchange every year. But behind this success lies a painful truth. The workers who make this possible, most of them women, are still underpaid and exploited. In one of the most profitable industries in India, they remain stuck in poverty. This is the story of one such worker, Neeta Oraon. She's 27 years old and lives in Nazira, a town in Assam's Shivsagar district. Neeta works in a nearby tea garden. Her day begins early. She sweeps her home, fetches water from a nearby pump, and prepares breakfast. The same meal she'll carry later for lunch. मेरा नाम नीता उरांग है। मैं चाय बागान में काम करती हूँ। 10 साल हो गया काम किया। मेरा घर में अभी माँ है, भाई 2 ठो है, बहू है और मैं हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी पापा चाय बागान में काम करते थे। तब तो हाजिरी कम था, एक दिन में 175 रुपया हाजिरा था तब।
उस समय तो हम लोग मम्मी पापा ही काम करता था, तभी तो दिक्कत होता था, हम लोग तो छोटा था। She takes care of her ailing mother, but to support the household, she heads to work. Every day, by 8 in the morning, she must be in the field, so she leaves home early. Assam alone contributes around 52% of India's total tea production and nearly 13% of global tea output. The state has over 800 organized tea estates and nearly 1 lakh small tea gardens. Together, the industry employs nearly 8 to 10 lakhs workers. Of them, around 4 to 5 lakh are women, the backbone of this workforce. They sustain a ₹1 billion industry, but their own lives are marked by struggle. According to the International Labour Organization, more than 50% of tea workers in Assam live below the poverty line. Bhadra Rajwar, a union leader and secretary of the Nazira branch of the Assam Cha Mazdoor Sangh, shares how the state has gained the most from the tea industry, while workers continue to be denied their fair share. चाय बागान में ज़्यादातर इस टाइम में महिलाएं श्रमिक ही काम कर रहा लोग को बहुत असुविधाजनक स्थिति में है वो लोग। गार्डन में दिन भर काम करता है, धूप हो या बरखन, घर में आकर भी काम करना पड़ता है और अपना रोजी रोटी के लिए बाल बच्चा के लिए काम करना ही पड़ता है। चाय बागान के श्रमिक ज़्यादातर आज 200 साल से गरीब है। ये लोग उठ नहीं पा रहा है। एक हिसाब से वो काम करता है, वो लोग का जितना तनख्वाह होना चाहिए उतना तनख्वाह कंपनी भी नहीं दे रहा है, सरकार का भी डिमांड नहीं है। इंडिया का दूसरा साइड में दूसरा लेबर का जितना तनख्वाह देते हैं, चाय बागान में काम करने वाला लेबर को उतना तनख्वाह नहीं दे रहा है। देश का आनंद प्रांत में जो 400 है 500 है, हम लोग 400-500 नहीं मांग रहा है। जो वेजेस बोर्ड में डिक्लेयर किया है चाय बागान के लेबर के 352 रुपया हम लोग का देने से हम सुखी है। और 352 रुपया आज 2016 से बोलते बोलते आज 2025 आ गया, अभी तक किया नहीं। तो असम सरकार का मिनिमम वेज बोर्ड में है 350 रुपया और टी इंडस्ट्री में हम लोग का कंपनी बागान दे रहा है 250 रुपया और असम सरकार का जो 2-4 बागान है एटीसी गार्डन वो लोग 205 रुपया दे रहा है। तो सरकार खुद दे नहीं पा रहा है चाय श्रमिक को 250 रुपया, तो वो कैसा बोलेगा मालिक के 300 दे दो बोले। कमानी ज़्यादा हो वो कम से कम सरकार भी नहीं चाहते। कंपनी तो नहीं चाहेगा मगर सरकार भी नहीं चाहते। Nita had a dream once, a dream to become a nurse. But she faces many hardships and her family's financial condition made it nearly impossible to chase that dream. छोटे थे तब स्कूल जाते थे। स्कूल जाने का टाइम में मैं सोचा था नर्स बनने के लिए। मेरी मम्मी पापा जो कमाते थे तो ऐसे तो घर नहीं चल सकते था, इसीलिए मैं नर्स बन के थोड़ा पैसा कमा के घर में सबको देखभाल भी कर सकते थे।
मैं ऐसे ही सोचा था। घर चलते थे, लेकिन थोड़ा ऐसे भी कभी काम राशन का थोड़ा दिक्कत होता था। अभी बीमार घर में कोई होने से पैसे की दिक्कत होता था। उस समय तो मेरे पापा ही बीमार हो गए थे जब हम लोग छोटा था। पहले से थोड़ा दर्द था कमर में, उसका बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट लिया और 1 महीना के बाद में उसका बीमार का इलाज किया। उसका बाद में कैंसर निकला, तब उसको इलाज करा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। पैसा पाती ज़्यादा खर्चा किया, तब भी वो ठीक नहीं हुआ। उसका बाद में मेरे पापा 2009 सन में डेथ हो गया। पैसा तो घर में जो सामान था वो भी बेच दिया उसको ठीक करने के लिए। बहुत कोशिश किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। घर में गोरू बेच दिया और माटी था वो बंधक दे दिया, और माँ जितना पैसा रखा हुआ था काम करके वो भी पैसा उसका खर्चा हो गया। पापा का डेथ हुआ, उसका बाद में मेरा दीदी काम करता था बगान में और मेरी माँ जाता था। उसी पैसे में हम लोगों का घर चलता था। तभी तो भाई सब भी 2 ठो स्कूल जाता था, मैं भी जाते थे। उस समय तो हाजिरी भी कम थी। घर में माँ भी बीमारी होते रहते थे। जो मेरी माँ का बीमार हुआ तो वो तो यहाँ ये मेडिकल बांडुखरी मेडिकल से रेफर दे दिया। वो अपना तरफ से देखा कि पैसा लगाने पड़े, ठीक हुआ। सरकारी मेडिकल में भी सब दर्द नहीं मिलता है, किनने भी पड़ता है। माँ जब बीमार होता था तो उसको भी हाजिरी नहीं मिलता था, काम नहीं एब्सेंट होता था। दीदी का काम किया जो पैसा माँ का दर्द लाना पड़ता है। और दीदी अकेले काम करने से घर में भी भाई सब भी पढ़ाई करता था। मैं स्कूल जाता था, ऐसे परीक्षा होने से फीस लेता था, और स्कूल जाने के टाइम में तो पैसा चाहिए, ऐसे 10 रुपया करके भाई सब स्कूल जाता था, हमको देता था। ऐसे दीदी कष्ट किया 5-6 साल। हम 10 तक पढ़ा और भाई सब 10 तक के पढ़ा। 2015 में मेरा दीदी शादी हो गया, तब घर में कमाने वाले तो कोई है ही नहीं। शादी के बाद में मैं उसका सीट में बगान में चाय बागान में काम किया, उसका बदली। घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़ दिया। Neeta left school midway. She had no choice. She had to start working to support her family. But Neeta is not alone. In the tea gardens of Assam, there are many like her, young girls with dreams forced to let them go. A 2017 study by Ruxana Sekia, a researcher at Guwahati University, sheds light on the state of education in these tea garden areas. Nearly 2.4 million children live in Assam's tea gardens. About 50% of them don't attend school regularly. Only 20% of children have access to early education in Anganwadi centers. Dropout rates in secondary schools range from 25 to 30%, especially among girls. With no access to quality education, children inherit their parents' struggle, generation after generation.
चाय बागान में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक दिन का हाजिरा 250 रुपया मिलता है। एक दिन में तो हम लोग 8 घंटा काम करते हैं बागान में, चाय बागान में। पत्ती ज़्यादा रहने से तो हाजिरा 24 किलो, पत्ती नहीं रहने से हाजिरा नहीं देता है। तो जितना पत्ती देता है उतना ही पैसा मिलता है आदमी लोगों का। जो हम काम करता है, दरमा जो मिलता है, उतना पैसा तो घर में ही खर्चा होता है और माँ का तो इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता है। मेरा 2 भाई और मैं अभी मिल के घर चला रहा हूँ। मेरे दोनों भाई अभी एक ठो चाय बागान में काम करता है और एक ठो भाई मिस्त्री करता है। But will this cycle ever break? Why does it continue decade after decade? And who is responsible for this? To understand this, Bhadra Rajwar speaks of years of neglect, low wages, and a constant fight for basic rights. चाय मजदूर का 250 रुपया में हम लोग का कितना आशा टूट जाता है। 250 रुपया में अपनी घर परिवार संभाले या बाल बच्चा का कोई उच्च मानदंड के स्कूल में पढ़ाए, पैसा कोई बैंक में, कोई डाकघर में जमा रखने के लिए हम लोग का कमी पड़ता है। चाय श्रमिक को 250 रुपया में दिन में खाना ही नहीं आता है तो वो रखेगा कहाँ डाकघर में। 15 दिन में 12 दिन में तनख्वाह मिलता है, 12 दिन में वो लोग को खा पी के ख़त्म हो जाता है। हम लोग का समाज में अपना घर में अगर 4 मेंबर है तो एक मेंबर काम करने से 3 लोग का पोसना या पढ़ाना संभव नहीं। इसीलिए हम लोग का लड़का बच्चा अगर मैच्योर्ड हो जाता है, पढ़ने के टाइम में कोई हाई सेकेंडरी पढ़ता है, कोई बीए पढ़ता है, लेकिन घर के कंडीशन देख के वो पढ़ाई छोड़ के फिर भी बागान में वो काम करने के मजबूर हो जाता है। अभी असम सरकार हो या इंडियन गवर्नमेंट फ्री शिक्षा दे रहा है, कंपनी भी वो बोलता है कि हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं। अब फ्री शिक्षा देने से वो शिक्षा लेने के लिए जाने के, अपना घर से जाने के अपना मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। घर में नाना रकम का टेंशन रहेगा, कोई लड़का लड़की का, माँ बीमार है, बाप भी बीमार है, वो स्कूल में फ्री शिक्षा दे, एमी फॉर्म दे रहा है, खाना दे रहा है बोल के स्कूल जाने से तो उसको दायित्व तो ख़त्म नहीं, और स्कूल जाने से भी उसको मन नहीं लगता है ना। और गवर्नमेंट या कंपनी आदमी को घर बेहतर करे, परिवेश ठीक रखे, तब न कोई किसी घर का लड़का जा सकता है पढ़ने के लिए शुद्ध मन एक लेके। 24 केजी पात नहीं तोड़ने से हाजिरा नहीं मिलता है। 240 दिन काम नहीं करने से उसको मेडिकल सुविधा से भी कटित कर देता है। जो तुम्हारा 20 दिन काम है, तुम्हारा 10 दिन काम है। अरे एक गर्भवती महिला बा कोई एनीमिया जिसको देहा में है, वो कैसे 20 दिन काम करेगा? उसको तो थोड़ा जोर शक्ति होना चाहिए ना। 8 घंटा में अगर पुरुष श्रमिक हो तो 2 ड्राम स्प्रे करेगा। अगर महिला श्रमिक पात तोड़ रहा है तो 24 केजी पात देना पड़ेगा। उस बागान में पाती हो या नहीं हो, उसको 24 केजी देने से भी हजरा मिलेगा। और 24 केजी से अगर कम देगा तो उसको हजरा काट देता है। और अगर 20 दिन काम नहीं जाए तो उसको रेशन भी कर देता है, चापात भी नहीं देता है। ये कानून है यार। ऐसा है अभी बागान में एनीमिया बहुत है हम लोग का लेडीज़ को। अच्छा पुष्टिकर खाना नहीं मिल रहा है हम लोग का आदिवासी या चाय श्रमिक के महिला को। लेडीज लोग का जो माँ बनते हैं वो लोग का
ज़्यादातर टी गार्डन में एनीमिया होते पा रहा है। ये खाना का प्रभाव। चाय श्रमिक के ज़्यादा काम है। ये मैनेजमेंट या कंपनी का ऑफिस में उतना काम नहीं है। मतलब चाय इंडस्ट्री में चाय श्रमिक के कमाई के ऊपर में सारा कंपनी चलता है। और चाय इंडस्ट्री का टैक्स में पर किलो चाय में ये जो टैक्स ले रहा है सरकार, वो सरकार भी चलते हैं। वो लोग ऊपर में पूरा मुनाफा लेता है। और जो लेबर अपना जान के कुर्बान करके हबी जंगल में काम करते हैं, रोज माने बारिश में धूप में, वो लोग का पूरा तनख्वाह नहीं देता है। विभिन्न कारण में वो लोग को वंचित करने चाहता है। वो लोग का 250 रुपया 2024 से हुआ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार और कंपनी श्रमिक को उपयुक्त तनख्वाह देने से इनकार करता है। वो लोग अपना मुनाफा पूरा लेता है। मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो शाम से सवेरे 24 घंटा गार्डन में ही रह के रात ड्यूटी करता है, सवेरे ड्यूटी करता है, दिन में ड्यूटी करता है, सारा मेहनत मजदूर करे और मुनाफा लूटे मालिक और सरकार। ये तो नाइंसाफी हो रहा है। मजदूर के भी समान समान हिस्सा दीजिए भाई। महंगाई है। 250 रुपये में कुछ आने वाला नहीं। फिर भी हम लोग को लाख श्रमिक 250 रुपया में कम से कम गुजारा कर रहे हैं। और वो लड़का बच्चा को ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं पा रहा है। कोई भारी आफत आ जाए मेडिकल में, जितना कंपनी सके कंपनी ट्रीटमेंट दे रहा है, हाँ, उससे भी अगर प्राइवेट में जाने पड़ेगा तो अपना माटी बाड़ी बेचने पड़ता है। चाय श्रमिक कंपनी क्वार्टर में रहता है। और वो कंपनी क्वार्टर भी लेबर का नहीं है। उसको काम रिटायर होने के बाद में उसमें कंपनी उसको निकाल देता है। तुम कहाँ जाते हो, जाओ। इसीलिए हम लोग चाय मजदूर संघ कोई श्रमिक निकाल नहीं पाए। इसीलिए कोई अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको घर का किसी सदस्य का परमानेंट दे देने को बोलता है, क्योंकि घर रखना है, नहीं तो जाएगा कहाँ। ये एक दस्तूर में चलता है बदली काम। अभी ऐसा हो रहा है जब परमानेंट आदमी घटने जा रहा है। कैजुअल लेबर के डिपेंडेंट रेशन नहीं है, डिपेंडेंट का मेडिकल नहीं है। वो खुद का जो कमाएगा वही पाएगा। एक परमानेंट लेबर जो कमाएगा उसका परिवार भी भूख करेगा। उसको एक घर भी देना चाहिए, पानी फैसिलिटी देना चाहिए, खोड़ी देना चाहिए, कंबल देना चाहिए, छाता देना चाहिए, एप्रॉन देना चाहिए, चप्पल देना चाहिए। ये फैसिलिटी से बचने के लिए ये लोग ज़्यादातर कंपनी कैजुअल लेबर रखना वो लोग बुद्धिमान के काम समझता है। असुविधा तो बहुत है, फिर भी सरकार या मालिक
अगर चाहे तो कुछ सुविधा दे सकते हैं। दिन भर बगान में काम करते हैं, टॉयलेट की सुविधा और वगैरह वगैरह, जैसे बड़ा बड़ा नाला होता है वो नाला में ये लोग पार होना दिक्कत हो जाता है। महीना होने के कारण में ये लोग यूनिटी से काम करने से ठीक रहता है। अकेला अकेला काम करने से लोग का सारे गार्डन के माज में डिस्टर्ब होता है लोग का। महिला कुछ महरी भी बनाओ, महिला को सरदार भी बनाओ, महिला महिला में रखिए। इसमें पुरुष के हो जाने से, पुरुष सरदार या बाबू हो जाने से महिला का कुछ तकलीफ होता है, क्योंकि महिला लोग काम करता है, फिर भी वो लोग का महीना में जो पीरियड होता है ना, उस टाइम में वो लोग का बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर महिला श्रमिक, महिला सरदार होता रहा तो ज़रूर बोलता रहा जाए, देखिए मैम हमारा ऐसा असुविधा है, हम काम करने के लिए आया है अपना बाल बच्चा के शर्तों में, लेकिन हमारा थोड़ा असुविधा है। लेकिन पुरुष बाबू या सरदार होने के कारण ये लोग छुपा के रखने पड़ता है अपना असुविधा, और इतना कष्ट करके भी 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है वो लोग का। वर्तमान टाइम में हम लोग का मजदूर शिक्षित हो, सबसे पहला वाला दिमाग है हम शिक्षित होना चाहिए। अभी भी हम लोग का शिक्षा के हार हम लोग का चाय इंडस्ट्री में या चाय जनजाति या आदिवासी में दूसरा समाज से बहुत पीछे है। तो हम लोग सबसे पहले चाहते हैं, चाय मजदूर संघ हो या हर संगठन चाहते हैं जो हम लोग का मजदूर का लड़का बच्चा शिक्षित हो। तो हम चाहने से क्या हुआ, हम लोग का परिवार शिक्षा दे नहीं पा रहा है ये थे, क्योंकि तनख्वाह कम है। इसीलिए हम लोग बोलता है जो हम लोग का जो दैनिक मजदूरी है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए। सरकार स्कूल दे रहा है, मतलब घर में खाने नहीं मिलने से वो स्कूल जाके क्या करेगा। बही किनने से, कलम किनने से अगर दिक्कत होता है तो माई के काम में जाने देखता है, माई बाबा का बहुत दुख हो रहा है हम लोग का पढ़ाने के लिए, तो वही खुद को स्कूल छोड़ देता है। अभी तो काम के चक्कर में तो टाइम मिलता ही नहीं पढ़ाई के लिए। हम अभी पढ़ाई तो चाह के भी पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरा पास टाइम भी नहीं है। और बागान में तो ज़्यादा दिन सुबह जाता है, शाम को आता है, टाइम ही नहीं मिलता है। हम जब स्कूल छोड़ दिया तब से लेके आज तक घर में जैसे परिस्थिति है, इसीलिए हम तो अपना बारे से छोड़ ही दिया सोचना। बुरा तो कभी लगता है क्या, लेकिन करना तो जो घर में जो ठीक होगा वही तो करना ही पड़ता है। इसीलिए तो घर में जो सब ठीक रहेगा उतना ही मेरा सब कुछ है। जहाँ शादी हो गई वहाँ तो किसी का ज़रूरत होने से तो काम तो करना ही पड़ते है पैसे के लिए। हम लोग तो चाय बागान में काम किया, आने वाला जो उन लोगों को तो अच्छा से पढ़ा के कुछ बनाना पड़ेगा। Even in this harsh reality, Neta still holds on to hope. She wants a better life for the next generation. She hopes that someday children from tea garden communities will not have to choose between survival and their dreams. चाय बगीचा, हरे चाय बगीचा, आदिवासी मानुषा हो डेरा कर, हरे डेरा कर, आदिवासी मानुषा हो डेरा कर, हरे डेरा कर, आदिवासी मानुषा हो डेरा कर, हरे डेरा कर।